जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 14। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मामवदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे केशव, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना और भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए, देवताओं का संरक्षण और राक्षसों का संहार करने के लिए एवं अन्यान्य कारणों से जो भगवान भिन्न भिन्न लीलामय स्वरूप धारण करते हैं, उनको देवता और दानव भी नहीं जानते। माया से नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले दानव लोग तथा इंद्रियातीत विषयों का प्रत्यक्ष करने वाले देवता लोग भी आपके उन दिव्य लीलामय रूपों को, उनके धारण करने की दिव्य शक्ति और युक्ति को, उनके निमित्त को और उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आपकी वाक्य रूपी किरणों का प्रसार हो गया है और इसीलिए अब मैं उन ऋषियों के बतलाए हुए मार्ग को पहचानने लगा हूं। अब यह मेरी समझ में भली भांति बैठ गया है कि मैंने इस जन्म में जो जो उत्तम पुण्य संपादित किए हैं, उन पुण्यों में, हे सद्गुरु, वह पदार्थ देने की बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है जो पदार्थ आप मुझे दे सकते हैं। और नहीं तो महर्षियों के मुख से आपकी महिमा मैंने न जाने कितनी बार सुनी एवं पढ़ी थी, परंतु जब तक एक आपकी कृपा नहीं हुई थी, तब तक कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता था। जिस समय देव अनुकूल होता है, उस समय जो उद्योग करो वह आप ही आप सफल हो जाता है। इसी प्रकार सुना और पढ़ा ज्ञान भी तभी फलदायक होता है जब गुरु की कृपा हो। शास्त्रों का लोग जो मन माना मंथन करते हैं अथवा योग आदि का अभ्यास करते हैं, उन सब का वास्तविक फल कब प्राप्त होता है? जब श्री सद्गुरुदेव कृपा करते हैं तब। अब इस बात का मुझे अच्छी प्रकार विश्वास हो गया है कि हे परम सद्गुरुदेव, बिना आपके बोध वचन प्राप्त किए जो केवल अपनी बुद्धि के बल पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे केवल निराश ही होना पड़ेगा। आत्मा को अनुभव द्वारा केवल आत्मा ही जानता है और किसी का सामर्थ्य नहीं कि उसको जाने। O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the gods nor demons, O Lord, know thy personality. Arjuna addresses the Lord as Keshava, Lord of all, because the Lord knows what is going on in his mind, as he is omniscient. Even though he accepts all that Krishna says as truth, he cannot comprehend the significance of the Lord's declarations. In fact, Arjuna admits here that his heart is satisfied and is overflowing with faith and belief, but his intellect is starved and is panting. Om. గీతాసుధ అధ్యాయము 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 14 సర్వమేత ధృతం మన్యే
యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవాన దానవాహ. ఏ కేశవ, నా కొరకు ఏదైతే తమరు చెబుతున్నారో అదంతా సత్యమని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. హే భగవాన్, తమ లీలామయ స్వరూపమును దానవులు ఎరుగరు, మరియు దేవతలు కూడా ఎరుగరు. హే కేశవ, జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తి, స్థితి మరియు సంహారం గావించేందుకు, ధర్మస్థాపనకు మరియు భక్తులకు దర్శనమిచ్చి వారిని ఉద్ధరించేందుకు, దేవతల సంరక్షణ మరియు రాక్షస సంహారం చేసేందుకు మరియు ఇంకా ఇతర కారణాల చేత భగవానుడు ఏ ఏ భిన్న భిన్న లీలామయ స్వరూపమును ధరించునో వాటిని దేవతలు మరియు రాక్షసులు కూడా ఎరుగరు. మాయచే నానా విధములైన రూపములను ధరించే శక్తి కలిగిన దానవులు, అలాగే ఇంద్రియాతీత విషయాలను ప్రత్యక్షంగా గావించే దేవతలు కూడా తమ దివ్య లీలామయ రూపములను, వాటిని ధరించే దివ్యశక్తి యుక్తులను, వాటి కారణాలను, వాటి లీలల రహస్యములను తెలుసుకోలేరు. వారే తెలుసుకోలేనప్పుడు ఇక్కడ సాధారణ మానవుల సంగతి ఏమిటి? అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు, ఏ ప్రభు, ఇప్పుడు మీ వాక్యరూప కిరణముల ప్రసారం జరిగింది. అందుచేత ఇప్పుడు నేను ఆ ఋషిచే చెప్పబడిన మార్గమును తెలుసుకోగలుగుతున్నాను. ఇప్పుడు నాకు బాగా అర్థమైంది ఏమిటంటే, నేను ఈ జన్మలో ఏ ఉత్తమ పుణ్యములు సంపాదించను, ఆ పుణ్యములలో ఏ సద్గురుదేవ ఏ పదార్థమునైతే తమరు ఇవ్వగలరో ఆ పదార్థమును ఇవ్వగలుగుటకు ఏమాత్రము నా దగ్గర సామర్థ్యము లేదు. లేదంటే మహర్షుల నోటి నుండి మీ మహిమను ఎన్ని మార్లు విన్నానో మరియు ఆ మహిమను ఎన్నిసార్లు చదివానో తెలియదు. అయితే ఎప్పటి వరకు మీ యొక్క కృప కలగదో అప్పటి వరకు ఏది కూడా నాకు అర్థం కాలేదు. ఎప్పుడు దైవం అనుకూలించినో అప్పుడు ఏ పని చేసినా అది దానంతట అదే సఫలమవుతుంది. ఇదే విధంగా వినినా చదివిన జ్ఞానం కూడా ఎప్పుడు గురుకృప కలుగునో అప్పుడే ఫలదాయకమవుతుంది. ప్రజలు శాస్త్రాలను తమ ఇష్టానుసారం మదిస్తారు లేదా యోగాభ్యాసాలను చేస్తారు. వాటి వాస్తవిక ఫలితము ఎప్పుడు లభిస్తుంది? ఎప్పుడు సద్గురుదేవుల కృపకలు చూపుతారో అప్పుడే. ఏ పరమ సద్గురుదేవ, తమ జ్ఞాన ప్రవచనము లభించకుండా ఎవరు తమ బుద్ధిబలంతో జ్ఞానాన్ని పొందాలని కోరుకుంటారో వారికి కేవలము నిరాశే మిగులుతుందనే విషయంపై నాకు ఇప్పుడు బాగా విశ్వాసం కలిగింది. ఆత్మను అనుభవం ద్వారా కేవలం ఆత్మ మాత్రమే తెలుసుకుంటుంది, అంతే తప్ప దాన్ని తెలుసుకునేందుకు మరి ఎవరికి సామర్థ్యము లేదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം, അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 14. സർവമേതദൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹിതേ ഭഗവാൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാനദാനവ. ഹേ കേശവ, അങ്ങ് എന്നോട് പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ പരമസത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹേ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ദിവ്യരൂപത്തെയും മഹിമയെയും ദേവന്മാർക്കും ദാനവന്മാർക്കും പൂർണ്ണമായി അറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയ്ക്കായും ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിനായും ഭക്തരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനായും ദേവന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹത്തിനുമായി അനേകം ദിവ്യലീലാ സ്വരൂപങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു. ആ ലീലാസ്വരൂപങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മഹിമയും അവയുടെ രഹസ്യവും ദേവന്മാർക്കും ദാനവന്മാർക്കും പോലും പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാനാവുന്നില്ല. പിന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഹേ പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വചനരൂപമായ ജ്ഞാനകിരണങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മഹർഷിമാർ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പുണ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഹേ സദ്ഗുരുദേവ, അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകുന്ന ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമായി. മഹർഷിമാർ മുഖേന അങ്ങയുടെ മഹിമ ഞാൻ പലവട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ കൃപ ലഭിക്കുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഏത് ശ്രമവും വിജയകരമാകുന്നത് പോലെ കേട്ടതും പഠിച്ചതുമായ ജ്ഞാനവും ഗുരുകൃപയാൽ മാത്രമേ ഫലപ്രദമാകൂ.
ശാസ്ത്ര പഠനമോ യോഗാഭ്യാസമോ എന്തു തന്നെയായാലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം ലഭിക്കുന്നത് സദ്ഗുരുവിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ഹേ പരമ സദ്ഗുരുദേവ, അങ്ങയുടെ ഉപദേശവും കൃപയുമില്ലാതെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയുടെ ബലത്തിൽ മാത്രം ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അവസാനം നിരാശരാകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമായി. ആത്മാവിനെ യഥാർത്ഥ അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയുന്നത് ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. മറ്റാർക്കും അതിനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാനുള്ള കഴിവില്ല. അതിന്റെ പൂർണ്ണ അനുഭവം ഈശ്വരകൃപയിലൂടെയും സദ്ഗുരു ഉപദേശത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ്. അഹങ്കാരത്തെയും ബുദ്ധിഗർവത്തെയും വിട്ട് വിനയത്തോടെ ഗുരുവിനെയും ഭഗവാനെയും ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അറിവ് അനുഭവമായി മാറുകയും ആത്മസത്യം വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 10, श्लोक 14. अर्जुन म्हणाला, हे केशवा, तू माझ्याविषयी जे काही सांगतोस ते सर्व मी सत्य मानतो. हे देवा, राक्षस आणि देवही तुझे खेळकर रूप जाणत नाहीत. हे केशवा, देव आणि राक्षस सुद्धा जगाची निर्मिती, अस्तित्व आणि विनाश, धर्माची स्थापना आणि भक्तांना दर्शन देऊन त्यांचे तारण, देवांचे रक्षण आणि राक्षसांचा संहार आणि इतर अनेक कारणाविषयी ओळखत नाहीत. मायेद्वारा विविध रूपे धारण करण्याची शक्ती असलेले राक्षस आणि दिव्य वस्तू प्रकट करणारे देव सुद्धा तुझे दिव्य खेळकर रूप, ती धारण करण्याची दिव्य शक्ती आणि पद्धत, त्यामागील कारण आणि त्यांच्या लीलाचे रहस्य समजू शकत नाहीत. मग सामान्य माणसाचे काय? अर्जुन म्हणाला, हे भगवंता, आता तुझ्या शब्दांचे किरण पसरलेले आहेत आणि त्यामुळे त्या ऋषींनी दाखवलेला मार्ग मला ओळखू येऊ लागलेला आहे. हे सद्गुरू, आता मला हे चांगले समजले आहे की तू मला जे काही देऊ शकतोस ते देण्यास मी या जन्मात मिळवलेले उत्तम सद्गुणही पुरेसे नाहीत. शिवाय मी महान ऋषींच्या मुखातून अगणित वेळा तुझा महिमा ऐकलेला आणि वाचलेला आहे. परंतु जोपर्यंत तुम्ही तुमची कृपा केली नाही तोपर्यंत मला काहीही समजू शकले नाही. जेव्हा ईश्वरी कृपा असते तेव्हा तुम्ही हाती घेतलेले कोणतेही कार्य आपोआप यशस्वी होते. त्याचप्रमाणे ऐकलेले आणि वाचलेले ज्ञान सुद्धा केवळ गुरूंच्या कृपेनेच फलदायी ठरते. जे लोक इच्छेनुसार शास्त्रांचे मंथन करतात किंवा योग साधना करतात त्यांना या सर्वांचे खरे फळ केव्हा मिळते? जेव्हा श्री सद्गुरुदेव आपली कृपा करतात. आता माझी पक्की खात्री पटलेली आहे की हे परम सद्गुरुदेव, तुमचे ज्ञानवचन प्राप्त केल्याशिवाय जो केवळ आपल्या बुद्धीच्या जोरावर ज्ञान मिळवण्याची इच्छा करतो तो केवळ निराशच होणार आहे. केवळ आत्म्याच्या अनुभवातूनच आत्म्याला ओळखता येते. त्याला जाणण्याची किंवा ओळखण्याची शक्ती इतर कोणामध्येही नाही. हे कृष्णा, तू मला जे काही सांगितलेले आहेस ते मी सर्व पूर्णपणे सत्य मानतो. हे सद्गुरुदेव, हे प्रभू किंवा दानवही तुझे व्यक्तिमत्व जाणत नाहीत. अर्जुन प्रभूला केशव म्हणजे सर्वांचा स्वामी म्हणून संबोधतो, कारण प्रभू सर्वज्ञ असल्यामुळे त्यांच्या मनात काय चाललेले आहे ते त्यांना माहीत असते. कृष्णाने सांगितलेले सर्व काही तो सत्य मानत असला तरी प्रभूच्या वचनांचे महत्त्व त्याला समजत नाही. खरे तर अर्जुन येथे कबूल करतो की त्याचे हृदय तृप्त आहे आणि श्रद्धा आणि विश्वासाने ओसंडून वाहत आहे, परंतु त्याची बुद्धी भुकेलेली आहे आणि तडफडत आहे. जय गुरुदेव. सर्वमेत धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुरदेवा न दानवा. हे केशव, अहाँ हमरा जे किछ कहैत छी एहि सबके हम सत्य मानैत छी. हे भगवान,
अहाँक लीलामय स्वरूप के ने दानव जानैत अछि आ ने देवता। हे केशव, जगत के उत्पत्ति, स्थिति आ संहार करबा लेल, धर्म के स्थापना करबा लेल, भक्त सबके दर्शन द क उनकर उद्धार करबा लेल, देवता सबके संरक्षण आ राक्षस सबके विनाश करबा लेल आ अनेको कारण सँ भगवान जे नाना प्रकार के लीलामय स्वरूप धारण करैत छथि से देवता आ दानवो पूर्ण रूपे नहीं जानैत छथि। माया द्वारा नाना रूप धारण करबा के शक्ति राखऽ वाला दानव सब आ जे इंद्रियातीत विषय के प्रत्यक्ष अनुभव करबाक सामर्थ्य राखऽ वाला देवता सब सेहो अहाँक दिव्य लीलामय रूप सबके, ओहि रूप सबके धारण करबाक दिव्य शक्ति आ युक्ति के आ ओकर गूढ़ रहस्य के पूर्णतः नहीं बुझि सकैत छथि। तखन साधारण मनुष्य सब लेल की कहल जाय? अर्जुन कहलखिन, हे प्रभु, आब अहाँ के वचन रूपी किरण सबके प्रसार भ गेल अछि आ एहि कारण आब हम ओहि बाट के चिन्ह लागल छी जे ऋषि सब बतौने छथि। आब ई हमर बुद्धि में नीक जकाँ पैस गेल अछि जे एहि जन्म में हम जे उत्तम पुण्य केने छी ओहि समस्त पुण्यों सब में एहन वस्तु देबाक कनिको सामर्थ्य नहीं अछि जे हे सद्गुरुदेव अहाँ हमरा प्रदान क सकैत छी। महर्षि सबके मुख सँ हम अहाँक महिमा कतेको बेर सुनने आ पढ़ने रही, मुदा जा धरि अहाँ कृपा नहीं भेल छल ता धरि हम किछ नहीं बुझि सकलहुँ। जखन देवता अनुकूल होइत छथि तखन जे कोनो उद्योग कयल जाय से अपने आप सफल भ जाइत अछि। ओहिना सुनल आ पढ़ल ज्ञान कतेको तखने फलदायक होइत अछि जखन गुरु के कृपा प्राप्त होइत अछि। लोक शास्त्र सब पर अपने मने घमर्थन करैत छथि, योग आदिक अभ्यास करैत छथि, मुदा एहि सब के वास्तविक फल कखन प्राप्त होइत अछि? जखन श्री सतगुरुदेव के कृपा होइत अछि तखन। आब हमरा ई विश्वास भ गेल अछि जे हे परम सतगुरुदेव अहाँक बोध वचन प्राप्त केने बिना जे व्यक्ति केवल अपन बुद्धि के बल पर ज्ञान प्राप्त करऽ चाहैत अछि ओकरा अंत में केवल निराशे हाथ लागत। आत्मा के अनुभव सँ केवल आत्मे जानैत अछि, दोसर ककरो एहन सामर्थ्य नहीं अछि जे आत्मा के जान सकै। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।